students. I hope you all are safe and healthy. My name is Ankita and I am teaching as an assistant professor in Department of Computer Science and Engineering at St. Andrews Institute of Technology and Management, Gurugram. I welcome all of you to the lecture 19th of my online lecture series, and in this video we will study MPT classes, container classes, bit fields and classes from the unit 1, and then we will start the topics from unit 2. So in previous video we studied about static members, and we also studied the use of keyword with variables, with member functions, with pointers. We also studied friend functions and friend classes, nested classes and local classes. I hope everyone was clear with these concepts. So here I have enlisted some important questions which can be asked from this video. That is, what do you mean by inheritance? What are the various types of inheritance? What are the effect of visibility modes in the members of base class as well as the derived class? What is the purpose of inheritance in playing the important role as a reusability and ambiguity in the multiple inheritance? So these are all are the questions. You will be clear with these questions after going through with this video. So we will start with the MPT classes. So any class which does not contain any data member, that is known as MPT class, and MPT class can have member functions, but if any class doesn't have any data member, then it is known as to be MPT class. So we can also create the object of the MPT classes. The declaration of the MPT class and its object are the same as we do in the normal class case. So here the important point which can be asked directly, or you should mention when writing the answer in your final examination, that what is the size of the MPT class. If a class is MPT, it doesn't contain any data member, then what will be the size of that MPT class? So we should always remember that the compiler never assigns the 0 byte to any of the classes. It will assign the minimum amount of memory to the MPT class even. So 1 byte will be assigned to the MPT class. If we create any object of the MPT class, the 1 byte will be assigned it as the minimum memory location. So this is the example. What will be the size of the MPT class? You can just check it with the help of size of operator. Okay, so here output will be the 1. So we have created two different classes. One class is having nothing in it, and another class is having only one member function. So what will happen next? We will just check the size of these classes. So this class and this class, because the member function doesn't occupy any space in the memory, because these memory is allocated for the memory variables, that's why the size of the MPT class with the functions or without the functions will be same. So in both of the cases 1 byte will be allocated. You can check that size accordingly by comparing these objects. So here we have a MPT class object 1 or MPT class object 2. So what it is doing, it is just checking that whether the two objects have different memory locations. नहीं, वो ये check करके बताएगा कि यहाँ पर हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, हम एमपीटी क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम बना लें, हम दोनों ऑब्जेक्ट को डिफरेंट मेमोरी लोकेशन मिलती है, लेकिन दोनों को 1 बाइट मिलेगा. तो अगर दोनों का जो मेमोरी लोकेशन सेम है तो वो जस्ट मैसेज प्रिंट कर देगा बोथ हैव द सेम एड्रेस. एंड इफ़ इट डजंट सेम, तो इट शुड राइट दैट बोथ ऑब्जेक्ट्स हैव different unique address. From here you can see that to an object of the MPT class 1 byte is allocated by the compiler as the unique address identification. So if a class has multiple objects, they can have different unique memory locations, but they will have those locations will be of 1 byte. Okay, so suppose if a class doesn't have any size, what would be stored on the memory location? So that's the reason, इसीलिए minimum value जो है 0 कभी भी store नहीं होती है. वो minimum जो location जो memory block है वो आपको 1 byte का assign करके देगा. So that is the 1 byte, that is the MPT class. So if we have virtual functions inside the MPT classes, we also studied the pointer associated with the virtual function, that is VPTR. So by the compiler, virtual pointer table is maintained. In that every virtual function is having the VPTR value. So if any MPT class does
contain any virtual function, even though there is no data member in the class, so its size will not be 1 byte. In that case it will be of 4 byte, क्योंकि हमने देखा था कि VPTR की मिनिमम वैल्यू जो है वो 4 बाइट की होती है, और वर्चुअल पॉइंटर साइज़ जो है 32 बिट प्लेटफॉर्म पे 4 बाइट का होता है और 64 बिट प्लेटफॉर्म पर 8 बाइट का होता है. वी हैव स्टडीड दैट when we make the function as a virtual, the compiler automatically sets a hidden VPTR class as a class data member field. So उस class data member के लिए जो size होगा वो 4 byte set होगा. So an empty class that contains the virtual functions in C++ is no longer empty class in that case. This is the example. Through this statement you can just check the size of the empty class which contains the virtual function. Okay, so we will proceed to the container class now. Any class which contains the objects or other type of data in it, that is known as the container class. So you can see, go with the definition as well, that a class said to be container class which holds the objects and the variables of the different type. So हमारे पास अभी तक हमने arrays देखे हैं, हमने structure देखे हैं, हमने classes देखे हैं. So all these types are user defined data type. Structure classes आपके पास, array जो है वो that is a derived data type. So array contains a similar type of data. If we are creating integer array तो सारी वैल्यू जो होंगी उसमें integer होंगी. अगर हम क्लास या स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो that is a collection of heterogeneous और dissimilar type of data. तो उनमें मिक्स हो सकते हैं, आपके इंटीजर हो सकते हैं, फ्लोट हो सकते हैं, कैरेक्टर हो सकते हैं. सो कंटेनर क्लास इन C++ is having the same properties, like it can hold and organize the multiple instances of the other type, like फंडामेंटल टाइप यानी बेसिक डेटा टाइप भी हो सकते हैं और अदर क्लास डेटा टाइप भी हो सकते हैं. अ जेनरिक क्लास प्लेज अ रोल ऑफ द जेनरिक होल्डर. सो हम ये जेनरिक क्लास जो हम बनाएंगे वो जेनरिक होल्डर का काम करता है. So this is a good blend of predefined behavior of and the interface that is well known. And the purpose of container class is to hide the topology for the purpose of objects list maintenance in the memory. See, मैंने यहाँ पर बहुत सारी lines और बहुत सारी definitions यहाँ पर include किए हैं so that you can get the clear idea of the container classes from every perspective. All in all, container class is a class which contains the blend of different type of data. लाइक प्री डिफाइंड डेटा भी हो सकता है आपके पास, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप भी हो सकते हैं. अ कंटेनर क्लासेस कैन बी होमोजीनियस एज वेल एज दी हीट्रोजीनियस. होमोजीनियस होंगे तो उसमें सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होंगे. दैट मीन्स अगर इंटीजर कंटेनर क्लास है तो सारे इंटीजर ही वो होल्ड करेगा. अगर हीट्रोजीनियस है तो उसमें इंटीजर, यूज़र डिफाइंड सब तरह के हो सकते हैं. तो द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कंटेनर क्लास इन C++ इज़ दी एरे. एरे हमारी स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी में एक बिल्ट इन क्लास होती है. So it can be equivalent to the homogeneous container classes, arrays. Okay, so there are many different kinds of container classes described in the standard template library जो हमने template वाली वीडियो में पढ़ा था. Each of which has various advantages and disadvantages and their own restrictions in their use. By far the most commonly used container class in the programming is array. Although C++ has built-in array functionality, programmer will often use an array container class. जो मैंने आपको अभी कंटेनर क्लास के बारे में बताया था वो ये कंटेनर क्लास होती है, और वेक्टर के लिए हमारे पास ये प्री डिफाइंड कंटेनर क्लास होती है. सो अनलाइक बिल्ट-इन array container classes generally provide dynamic resizing. Remember their size. जो डायनामिक रिसाइजिंग का फ़ायदा क्या होता है, जो साइज़ अपना वो याद रखता है when they are passed to a function, and do the bounds checking as well. सो बाउंड्स की और इंडेक्स की प्रॉब्लम जो है वो यूज़र को हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है, वो क्लास खुद करती है. दिस नॉट ओनली मेक्स एरे कंटेनर क्लास मोर कन्वीनियंट देन द नॉर्मल एरेज बट सेफर टू. सो कंटेनर क्लासेस typically implement a fairly standardized minimal set of functionality. और ये फंक्शनैलिटी होती हैं, सबसे पहले एक कंस्ट्रक्टर की हेल्प से आप कंटेनर क्लास को क्रिएट करेंगे, एम्प्टी कंटेनर को. देन यू विल इंसर्ट एन ऑब्जेक्ट, new object into the container. You can remove the object from the container. You will report the number of objects that are currently present in the container. Then you can empty all the objects from the container, then provides access to the stored objects, and it can also sort the elements. So that is the optional. So containers can be on the basis of values
or on the basis of variables, they can be of two types: value containers and reference containers. So value containers are compositions that store copies of one object that they are holding, and thus responsible for creating and destroying the copy. So composition हमारी जो होती है, जो हमने देखा था रिलेशनशिप्स ऑफ क्लासेस में देखा था, composition इज़ वन रिलेशनशिप ऑफ क्लास. सो वैल्यू कंटेनर्स जो होते हैं, कंटेनर्स आर अगेन अ क्लास. सो जो वैल्यू कंटेनर्स होते हैं वो कंपोजिशन बिहेवियर को दिखाते हैं, और रेफरेंस कंटेनर्स जो होते हैं वो एग्रीगेशंस को दिखाते हैं. एंड दी एग्रीगेशंस आर दैट स्टोर pointers or the reference to the other objects, and thus are not responsible for creation and the destruction of the object. And unlike in the real life, when containers can hold whatever type of objects you put into them, the C++ container typically only hold one type of data. So we can consider the example of array. अगर हम सिमिलर टाइप के और ये ऐसे कंटेनर्स की बात करें जो स्ट्रिक्टली एक ही टाइप के डेटा को होल्ड करता है, तो वो आपका एक बेस्ट एग्जांपल है एरे आपके प्रोग्रामिंग में. ये सिर्फ इंटीजर टाइप के एरेज को ही इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ को ही होल्ड करेगा. और बाकी इसके अलावा कुछ और भी कंटेनर्स हैं दैट डू नॉट अलाउ यू टू आर्बिट्रेरीली मिक्स टाइप्स. इफ़ यू नीड कंटेनर्स टू होल्ड इंटीजर्स एंड द डबल्स, देन यू विल जनरली हैव टू राइट टू सेपरेट कंटेनर्स टू डू दैट. एक डबल के लिए बनाएंगे और एक इंटीजर के लिए बनाएंगे. लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जाम्पल. ये एक थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल है जिसमें डॉक्टर्स जो कि एक हॉस्पिटल में काम करते हैं, और वो जो डॉक्टर हैं वो किस पेशेंट को चेक करते हैं, कौन सा पेशेंट उनके अंडर है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर इस प्रोग्राम के थ्रू मेंशन की हुई है. लाइक डॉक्टर का नेम और डिग्री, जो कि उसके क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पर डिसाइड करेगा कि किस डिजीज़ के पेशेंट उनके अंडर जो है वो चेक किए जाएंगे. सो क्वालिफिकेशन एंड गेट क्वालिफिकेशन एंड शो क्वालिफिकेशन आर टू फंक्शंस जिनमें आप नेम्स और डिग्री को एंटर कराएंगे. क्लास पेशेंट हमारी एक दूसरी क्लास है. सी यहाँ पर जो कंटेनर क्लासेस का केस होगा उसमें कोई इनहेरिटेंस नहीं होता है. सो नो क्लास इज़ एसोसिएटेड विद एनी अदर क्लास. एक क्लास का स्कोप ख़त्म होगा तब हम दूसरी क्लास का जो है स्कोप स्टार्ट करेंगे. यहाँ पर पेशेंट का नेम और नंबर, पेशेंट के नेम और नंबर, तो गेट डेटा और शो डेटा की हेल्प से हम यहाँ पर पेशेंट की इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करेंगे. वार्ड एक अनदर क्लास हमने बनाई है जिसमें हम वार्ड की हमने एक एरे लिया है, कैरेक्टर एरे लेंथ, तो जिसमें नाम हम वार्ड का डिस्प्ले कराएंगे और शो डेटा की हेल्प से उसे हम डिस्प्ले कराएंगे. सो नेक्स्ट कम्स, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ऊपर हमने 3 क्लासेस ली हैं, और ये जो हमारी क्लास अमाउंट है दैट इज़ द 4th क्लास विच इज़ द कंटेनर क्लास. डॉक्टर एक क्लास ली थी हमने, ऊपर एक पेशेंट एक क्लास ली थी, और एक डिपार्टमेंट हमने एक क्लास ली थी. सो अमाउंट इज़ अ क्लास फाइनली जो कि डॉक्टर किस पेशेंट को देख रहे हैं और उसके अंदर कितने पेशेंट्स हैं उसके बेसिस पर अमाउंट इवेल्युएट करके बताएगा. तो ड्यूज़ चेक करने के लिए एक इंटीजर ड्यूज़ हमने ले लिया. ये देखिए आप यहाँ पर हेयर वी हैव क्रिएटेड ऑब्जेक्ट्स ऑफ 3 डिफरेंट क्लासेस. लाइक आपका यहाँ पे पेशेंट की क्लास का ऑब्जेक्ट है, PAT डॉक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसीलिए इस क्लास को हम कंटेनर क्लास बोल रहे हैं, बिकॉज दिस क्लास इज़ फर्दर कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स एंड दी फंडामेंटल डेटा टाइप. सो इंटीजर भी यहाँ पर है और ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर है. वॉइड गेट डेटा की हेल्प से हमने इसमें उन सभी फंक्शंस को कॉल कराया है जो हमने पेशेंट क्लास में, डिपार्टमेंट क्लास में या डॉक्टर क्लास में क्रिएट किए हुए हैं. So we are calling those functions with the help of these objects, and in the case of show data, it is just calling the show data or show qualification or show data of your patient, department and the doctor class respectively. So in the main function यहाँ पर हमारे पास कोई काम नहीं रहा, हमने सिर्फ अमाउंट का ऑब्जेक्ट बनाया है जिसमें कि हमने ये हमारा कंटेनर ऑब्जेक्ट हो गया. इस केस में क्या हो गया, ये जो ऑब्जेक्ट हमारा है ये कंटेनर ऑब्जेक्ट है हमारा, जिसमें हमने गेट डेटा, जो अमाउंट के अंदर गेट डेटा है वो कॉल होगा. तो बाय डिफ़ॉल्ट तीनों ही जो है हमारे क्लास के गेट डेटा फंक्शंस कॉल हो जाएंगे. सिमिलरली शो डेटा कॉल हो जाएगा. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़, दिस वाज द कंटेनर क्लास. सो कंटेनर क्लास इज़ अ बंच ऑफ और कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर टाइप ऑफ डेटा, जिसमें आपके ऑब्जेक्ट्स और फंडामेंटल डेटा टाइप और डिराइव्ड डेटा टाइप आप कुछ भी बना सकते हैं. बिट फील्ड्स हमारे पास एक यूनिक कंसेप्ट है जो सी में भी था और C++ में भी था. इसका इट सेज द आइडिया इज़ टू यूज़ द मेमोरी एफिशिएंटली, बिकॉज हमारे पास अगर हम इंटीजर कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, तो हम
इंटीजर हमारा 4 बाइट का होता है, फ्लोट हमारा 8 बाइट का होता है, तो कुछ फ्लोट हमारा 4 बाइट का होता है। तो कुछ केसेस में ऐसा होता है कि इंट अगर मैंने इंट एज अगर मैं एंटर करा रही हूँ, तो मैं मान लीजिए मैंने 24 एज एंटर कराई, तो उसको जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 4 बाइट जो है कंप्लीट नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ बाइट उसमें से हमारी बिट्स उसमें से हमारी वेस्ट हो जाएंगी। सो उस पर्पज़ के लिए अगर आप चाहें तो आप अपने वेरिएबल्स के लिए उतने ही नंबर ऑफ़ बिट्स मेंशन कर सकते हो जितने कि उस फील्ड को, जितने कि उस डेटा मेंबर को रिक्वायर्ड है। जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है अनसाइंड इंट बी, जो तो 3 बिट्स, यहाँ पर जो बिट फील्ड है वो ये हम इसे कॉलन से और यहाँ पर मेंशन करके स्पेसिफाई करते हैं कि मुझे इतने नंबर ऑफ़ बिट्स मेरे इस बी वेरिएबल के लिए चाहिए, तो बिट फील्ड उस केस के लिए यूज़ होता है। ओके, so classes and the structure they can contain members that occupy less storage than the integral type, so these members are specified as the bit fields। so इनका सिंटेक्स होता है हमारे पास कि हमें यहाँ पर डिक्लेरेटर देना होता है सबसे पहले, और फिर हमें देते हैं कांस्टेंट एक्सप्रेशन, दैट इज हम कितने बिट हम उसके उस डिक्लेरेटर या उस वेरिएबल के लिए असाइन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक मेन एग्जांपल लिया हमने स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में हमने एक इंटीजर बी लिया है जिसे हमने बिट फील्ड के थ्रू 3 बिट असाइन किए हैं। तो जो 3 बिट अनसाइड फील्ड होता है वो 0 से लेकर के 7 तक की वैल्यूज़ को असाइन करा सकता है। हेयर वी हैव क्रिएटेड वन ऑब्जेक्ट ऑफ द स्ट्रक्चर एस, और जिसमें हमने पास कराया है वैल्यू 7। सो बाय कॉलिंग और बाय इंक्रीमेंटिंग दिस ऑब्जेक्ट वी आर लुकिंग एट दी ऑपरेशन दैट क्या ओवरफ्लो हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ पर 7 बिट एंटर कराया है। तो यू ऑल आर रिक्वायर्ड टू रन दिस example in the online editor and then see the output. Bit fields we have already done in the classes as well, so you should run these examples in the online editor and then you should see the difference. So bit fields जिस तरह से हमने यहाँ पर सिंगल एक वैल्यू हमने यहाँ पर असाइन कराई है, सिमिलरली वी कैन हैव द पैक्ड bit fields as well, as you can see in this diagram। जो यहाँ पर हमने अनसाइड कैर b1 will be having 3 bits, then b1 will be having of 2 bits, so you can see this from here, 3 bits use value for the b1 and 2 bits unused, and 6 bit for b2 value and 2 bit for value of b3 and 3 bits are the unused। तो यहाँ पर हमने जो कॉलम्स में हम यहाँ पर जो यूज़ कर रहे हैं वो वैल्यूज़ को यहाँ पर स्पेसिफाई करते हैं। तो आप सब इस एग्जाम्पल्स को रन करके देखना। अब यहाँ पर मैंने डेट, जब कुछ ऐसे वेरिएबल्स भी होते हैं जिनकी वैल्यू हमें चेंज नहीं करनी होती है और उनकी वैल्यू जो होती है वो सेम रहती है, लाइक यू कैन नॉट एंटर द वैल्यू 32 फॉर द मंथ डेज ऑफ द मंथ, एंड यू कैन नॉट एंटर द वैल्यू मोर देन 12 for the month of the year। So for that program I have included one example here। This is D for date, month for M for month, and Y for year। So this is a structure, and in the main function I have just checked the size of the struct date, so that I will perform with the help of this parameter, this object size of operator। So this is the way to initialize the value for the dt object of the structure, and this is the way to display the values individually, dt.d, dt.m and dt.y। so the output of this program will be like this। so you will get more clear idea when you will perform these examples। next we come on to the inheritance। See, inheritance we all know very important and very interesting aspect of the object oriented programming। it includes the deriving features or the deriving characteristics from the existing class, or it can also be defined as the deriving a new class from the existing class from the old one। so this is, और इनहेरिटेंस के साथ हम रीयूजेबिलिटी का भी कंसेप्ट हमारे पास आता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जो क्लास ऑलरेडी बनी हुई होती है उसे हम सुपर क्लास बोलते हैं या बेस क्लास बोलते हैं, और जो क्लास हम डिराइव करते हैं उसे हम डिराइव क्लास बोलते हैं या सब क्लास बोलते हैं। सो दिस इज़ द सिंपल एग्जाम्पल। यस, आई हैव इंक्लूडेड 2 एग्जाम्पल्स हियर। एक आप व्हीकल का एग्जाम्पल ले लो और एक आप किसी कॉलोनी में रहने वाले लोगों का एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल 1 सेज कि अगर आपके पास व्हीकल है तो बस, कार, ट्रक,
आप 3 अलग अलग क्लास बना रहे हो जिसमें कि ऑब्वियसली कुछ कॉमन फीचर्स होंगे। अगर हम व्हीकल की बात करें तो दे विल बी हैविंग फ्यूल, दे विल बी हैविंग इंजन, दे विल बी हैविंग सम नेम ब्रांड, तो ये कॉमन फीचर्स सब में होंगे। सो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग दी सेपरेट क्लासेस फॉर ईच ऑफ दी क्लास, लाइक बस के लिए अलग क्लास बनाया, क्लास के लिए कार के लिए अलग, और ट्रक के लिए आप अलग क्लास बना रहे हैं, जबकि इनका जो फंक्शंस हैं दे आर सेम, fuel amount, fuel amount, fuel amount, capacity, capacity, capacity. So what are you are doing here? You are writing the definitions of these functions again and again. So there will be redundancy of the functions. So we can resolve this redundancy with the help of one single class. Like अगर हमारे पास कुछ ऐसे कॉमन फंक्शंस है जो सभी क्लासेस में यूज़ होने हैं, वी विल एनकैप्सुलेट और वी विल राइट दोज फंक्शंस इनसाइड वन क्लास, दैट इज़ व्हीकल। हमने यहाँ पे बना लिया। अब हम जो क्लास बस है, कार है, ट्रक है, वो हम इस व्हीकल क्लास से डिराइव करा सकते हैं। सो ये जो हमारा है परफेक्ट एग्जांपल है इनहेरिटेंस का। इससे क्या होगा कि हमें जो है यहाँ पर फ्यूल का, कैपेसिटी का और अप्लाई ब्रेक्स के लिए इन तीनों क्लासेस में अलग अलग फंक्शंस लिखने नहीं पड़ेंगे। द सेकेंड एग्जाम्पल कंटेन्स एक कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं जिन्हें हमने कैटेगराइज किया, लाइक एक मैथ्स टीचर है, एक फुटबॉलर है, एक बिजनेसमैन है, और भी चीज़ें हो सकती हैं, बट दे डिफ़र अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्यूपेशन। बट उनमें कुछ चीज़ें कॉमन है, लाइक टॉक, वॉक एंड ईट ऑल्सो। तो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन परस्पेक्टिव से आप ईट का भी एक फंक्शन बना सकते हो। सो यहाँ पर अलग अलग क्लासेस हमने बनाए हैं, इन फंक्शंस को हम रिपीटेडली तीनों क्लासेस के अंदर लिखेंगे। यहाँ पर भी आप एक पर्सन क्लास बना सकते हो जिसमें आपने ये तीनों फंक्शंस जो आपके कॉमन है वो आपने लिख लिए। एंड फॉर टीचर मैथ्स you can create a separate class, for footballer, for businessman you can create separate classes, and in those derived classes you can write their own functionality. So base class जब हमारे पास होगी तो derived class inherits all the features of base class as well as it can have its own features or characteristics or member functions. So how we can implement the inheritance in C++? This is the syntax to implement the inheritance. This is the class keyword. This is the class keyword. This is subclass name or the derived class name. This is the access mode specifier, and this is the base class name. This is the method or syntax to implement the inheritance. तो यहाँ पर हम जो लिखेंगे वो डेफिनेशन ऑफ हमारी क्लास होगा। सब क्लास हमारी डिराइव क्लास है। एक्सेस मोड जो है एक मोड होता है इन विच यू वांट टू इनहेरिट दीज सब क्लासेस, फॉर एग्जांपल पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, एटसेट्रा। Base class is the base class from which you are inheriting. So this is a class shape, and in this class we have one set width function with one set height function, and two data members are there, width and height. So we have derived one class named rectangle from this shape class, which is having its own get area function. It is a derived class. सो इन मेन फंक्शन यूजुअली जब आप इनहेरिटेंस कर रहे हो तो यू विल हैव द ऑब्जेक्ट ऑफ द डिराइव क्लास, क्योंकि डिराइव क्लास बेस क्लास के फीचर्स को इनहेरिट करता ही है। तो मेन क्लास में यू कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द डिराइव क्लास एंड यू कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शनैलिटी जो आप नॉर्मल केस में करते। तो सेट विड्थ की हेल्प से यू विल असाइन द वैल्यू 5 टू विड्थ, एंड फॉर हाइट यू विल असाइन द वैल्यू 7 to height, and when you will call this function get area you have to use the object of the derived class. So we studied the access modifier. So ये जो access modifier होते हैं ये क्या होते हैं, we will understand this with the help of this table. इस टेबल में ये सब जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ये सब encapsulate, और you can say इस टेबल के थ्रू हमें easily समझ में आ जाएगा। So in this table we are having the different access modifiers. So here I have mentioned the access specifiers, public, protected and private. So these are the type of inheritance. Like public के केस में क्या होगा, protected के केस में and private के केस में क्या होगा. So when we have public as a access specifier, so what will be happening with the public data members of the base class? So वो जो सभी public data members base class में है वो डिराइव में आकर के भी पब्लिक हो जाएंगे। अगर हमारे पास कोई प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर है बेस क्लास में, सो वो डिराइव क्लास में आकर के प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स की तरह एक्ट करेंगे। एंड इफ़ एनी प्राइवेट डेटा मेंबर इज़ देयर इन द बेस क्लास, सो जो डिराइव क्लास है पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यूज़ करने से वो सभी प्राइवेट डेटा मेंबर्स डिराइव्ड में आके भी प्राइवेट हो जाएंगे।
सो अगर हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर एज ए प्रोटेक्टेड है, सो इन द केस ऑफ पब्लिक डेटा मेंबर्स they will become the protected in the derived class, and in the case of protected data members it will become protected in the derived class. In the case of private, so private हर केस में private ही रहेंगे. Private data of base class is never inherited. So when we have private data private as the access specifier, what will happen? प्राइवेट के केस में जो पब्लिक डेटा मेंबर्स जो हमारे बेस क्लास में है वो सभी आकर के यहाँ पर हिडन हो जाएंगे. दैट मीन्स वो उस क्लास के लिए ड्राइव के लिए प्राइवेट हो जाएंगे. प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स के केस में भी ये आकर के यहाँ पर प्राइवेट बन जाएंगे. यू कैन नॉट एक्सेस और अदर क्लास फ्रॉम द डिराइव क्लास कैन नॉट एक्सेस दोज प्राइवेट डेटाज. ओके, एंड इन द केस ऑफ प्राइवेट ऑब्वियसली इट इज़ प्राइवेट डेटा मेंबर, तो प्राइवेट ही रहेंगे वो एज इट इज़. A derived class inherits all the base class methods with the following exceptions. Constructors and destructors copy constructors of the base class. Operators of the base class different functions of the base class. So a derived class inherits all the base class method except these 3 points like constructor, overloaded operators and friend functions. So here we have 5 types of inheritance. Very simple or very important topic. Directly it can be asked that explain what are the various types of inheritance. So in single inheritance we have one superclass and one base class. This base class is B is deriving all the features or the characteristics of class A. This is the derived class and this is the superclass A class. So हर example हर type के साथ I have written one example for your convenience. So you can see here we have one class which is named with the public and car is the derived class from the vehicle. सो कार का हमने ऑब्जेक्ट बनाया एंड वी कैन इन्वोक द कंस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास ऑल्सो. सो क्या हो रहा है यहाँ पर, कार के लिए हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है. तो व्हाट विल हैपन हियर, सो इफ बेस क्लास इज हैविंग एनी कंस्ट्रक्टर it will create the object of the सब क्लास and it will invoke the base class constructor first. and अगर सेकेंड टाइम पर इसका कुछ कंस्ट्रक्टर खुद का होता तो ये उसका केस में कॉल कराता. इन द केस ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस वी हैव hierarchy of one base class, then second base class and then the child. So there is one super class and there will be one intermediate base class you can say, because for this C class it is the base class, B is the base class for C and for B A is the base class. So this example can be shown with the help of vehicle class again. So हमने पहले बनाए थे हमने single inheritance में car class derive की थी, but in this case we can derive 2 classes like two wheeler and the motorcycle. So what we are trying to display, यहाँ दिखा रहे हैं हम कि एक vehicle है, उसमें हमारे पास two wheeler है, but specifically two wheeler what contains motorcycle or scooter also you can write here. So we will create the object of the derived class. तो जो सबसे लास्ट में derived class होगी वो हमारे पास उसका object होगा और accordingly सब perform होगा. this the output. First of all it is displaying the base class constructor, then it will display the constructor from the second base class, or then it will display the constructor of the derived class. So this is the way to run or to execute the constructor. So next comes the multiple inheritance. Multiple inheritance where we have 2 parents and 1 child. So the syntax to derive classes in multiple inheritance is the first of all class keyword will be there, then derived class name, access modifier and base class name 1 will be there, then comma access modifier for the second base class, then it will be there. So this is the example for implementing the multiple inheritance. So you will see the ambiguity associated with the multiple inheritance. Understand this with the help of this diagram. Consider if this A is also having one variable named A, okay, and this B is also having one variable named A. Okay, so consider if class A is also having one variable named A and B is also having one variable named A. So what C is doing, C is deriving all the data member, और इसका एक और यहाँ पर B होगा और यहाँ पर एक Y समझ लीजिए. So C के पास क्या क्या आ रहा है, A की वन कॉपी ऑब्वियसली. सो अगर हम ये लिखते हैं A एंड A, क्योंकि एक A हमने क्लास A से लिया एंड सेकेंड A विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम द क्लास B, and on the next level it will be having B and it will having Y also.
So if C is trying to assign some value to A, so to which A it will assign the value either of A class or the B class. So अब इस केस में ये क्या करना चाहेगा? सो यहाँ पर हमारे पास A की मल्टीपल कॉपीज़ हैं. सो दिस काइंड ऑफ एम्बिग्विटी कंपाइलर फेसेस. सो ये हम रिजॉल्व करेंगे फर्दर इन दिस वीडियो. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द मल्टीपल इनहेरिटेंस. ओके. सो यहाँ पर हमारा मेन फंक्शन था. कार हमारी जो क्लास है वो सबसे जो चाइल्ड क्लास है वो हमारी क्लास कार है. सी हेयर, एज यू कैन सी हेयर, यहाँ पर देखिए कार हमारी डिराइव क्लास है. व्हीकल क्लास 1 है एंड 4 व्हीलर क्लास 2 है. ये बेस क्लास 1 है, ये बेस क्लास 2 है. सो इन दिस ऑल्सो वी हैव क्रिएटेड द कार ऑब्जेक्ट हेयर OBJ. यहाँ पर क्या होगा, अगर व्हीकल क्लास में भी और 4 व्हीलर क्लास में भी हमारे पास सेम नेम का वेरिएबल होता A, तो उसकी कॉपी जो है यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स होती डिराइव. सो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता कि मुझे कौन सी कॉपी यूज़ करनी चाहिए. और अगर ऑब्जेक्ट उसको वैल्यू को कुछ वैल्यू उस वेरिएबल को कुछ वैल्यू असाइन करना चाहता तो वो कैसे कर पाता उस चीज़ को. तो ये एम्बिग्विटी होती है हमारे पास. नेक्स्ट आता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, जिसमें ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है. एक बेस क्लास होगी, देन इट विल फर्दर हैव इट्स चाइल्ड, देन चाइल्ड विल फर्दर हैव देयर ओन चाइल्ड्स. सो दिस डायग्राम इज सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम और दिस प्रोग्राम, जिसमें आप इसमें कोड कुछ भी लिख सकते हैं. दिस इज जस्ट अ फॉर्मेट हाउ यू विल क्रिएट द hierarchy inheritance. So this is hybrid inheritance in which we have collection of multiple inheritance, hierarchical inheritance and multi-level inheritance. So the hybrid inheritance is a combination of these three types of inheritance. So ambiguity in multiple inheritance, हायरार्किकल का एग्जाम्पल आप यहाँ पर से देख सकते हो. बट यू शुड अंडरस्टैंड कि हमारा जो प्रॉपर डिराइविंग का तरीका है वो क्या होता है. बस आप पूरा प्रोग्राम उसको इजीली लिख सकते हो. So ambiguity in multiple inheritance, there are two base classes and both the base class have the functions or the variables. So with the same name, जैसा मैंने बताया था A हमारा वेरिएबल हो सकता है दोनों में सेम नेम का, और सिमिलरली फंक्शन भी सेम नेम के हो सकते हैं. So let's come at this example. So here we have one class A and इसके पास एक कंस्ट्रक्टर है ABC जो कि इस क्लास के मैसेज को डिस्प्ले करा रहा है. So here we have class B again, दो सेपरेट क्लासेस हैं यहाँ पर, एंड दिस इज़ अगेन हैविंग इट्स ओन कंस्ट्रक्टर. यहाँ पर हमारे पास सॉरी नॉट कंस्ट्रक्टर, इट इज़ अ फंक्शन नेम with ABC which is also present in the class A and class B. तो यहाँ पर सेम नेम का फंक्शन है ABC A में और B दोनों में. तो लेकिन अंदर की डेफिनेशन, अंदर का स्टेटमेंट अलग है. सो हम जब C क्लास डिराइव करते हैं इन दोनों से, यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस का केस आ रहा है. तो जब ये दोनों चीज़ें हो रही हैं तो अब जो हम OBJ से हम इस ABC को कॉल कराना चाहेंगे तो कौन सा फंक्शन कॉल कराएगा कंपाइलर, ये प्रॉब्लम यहाँ पर आती है. सो दिस विल बी दी एम्बिग्विटी. अगर ABC फंक्शन की तरह हमारे पास A वेरिएबल भी दोनों क्लासेस के अंदर होता तो उस केस में भी हम कौन से, अगर हम ये कराते ऑब्जेक्ट A डॉट 10 वैल्यू करा दे, तो कौन सी कॉपी को आपको कौन से A वेरिएबल को, ठीक है, वैल्यू असाइन करानी है. वैल्यू क्लास A या क्लास B के कौन से वेरिएबल को आप वैल्यू असाइन कराना चाहते हो. एक और एग्जांपल यहाँ पर मैंने ऐड किया है आपका जो एम्बिग्विटी है उसे समझने के लिए. यहाँ पर हमारे पास क्लास A है, उसमें एक वेरिएबल है, क्लास B है, हमने क्लास A में से इनहेरिट किया है. देन यहाँ पर क्लास C है जिसे भी क्लास A में से इनहेरिट किया है, एंड देन वी हैव क्लास D. सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ मल्टी पाथ इनहेरिटेंस बेसिकली. सो यहाँ पर हमने देखो, यहाँ पर हमारे पास क्लास A में एक A वेरिएबल था. इट वॉज डिराइव्ड फ्रॉम क्लास B एंड क्लास C बोथ. दोनों के पास एक ही कॉपी गई, एंड देन क्लास D के पास भी एक ही कॉपी गई. बट वो कॉपी उसे क्लास B से मिल रही है या क्लास C से मिल रही है, वो कैसे डिसाइड होगा. तो जब हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट की हेल्प से, ऑब्जेक्ट डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से वैल्यू असाइन करानी चाहिए, यहाँ पर क्या एरर दिखा रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है कि कंपाइलर इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड और टू resolve that this A belongs to which class, either to class B or to class C. Similarly again हमने दूसरे टाइम पर फिर हमने अगर हम सोच रहे हैं कि दिस आई वुड कंसीडर फॉर क्लास B और क्लास C, अगर आप इस तरह से लिखना की सोच रहे हो
तो अगेन सेम प्रॉब्लम विल बी देयर, क्योंकि ए की ही वैल्यू यहाँ पर आपने ये तो कहीं मेंशन नहीं किया कि ये क्लास बी से लिया या क्लास सी से लिया है। अगर आप इस तरह से वैल्यू करना चाहते हो कि आप क्लास नेम स्पेसिफाई करके करना चाहो, तो ये जो आपने स्टेटमेंट लिखी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट नेम देन क्लास नेम। क्लास, अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो ए है, कंपाइलर विल गेट टू नो कि ये जो ए कॉपी है वो हमारी क्लास ए बी से बिलोंग करती है और ये जो ए कॉपी है वो हमारी क्लास सी से बिलोंग करती है। इन दिस केस यू कैन असाइन वैल्यू, देयर विल बी नो प्रॉब्लम, ये हमारा बिल्कुल ठीक चलेगा। लेकिन जब हम इन स्टेटमेंट्स को इस तरह से लिखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कंपाइलर एरर आएगा। ओके, सो इन दोनों स्टेटमेंट्स के थ्रू हम क्लास बी और सी दोनों के वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकते हैं। क्योंकि बी जो था वो क्लास बी का ही वेरिएबल है, तो सिंगल कॉपी पास हुई है, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। 20 विल बी असाइन टू इट, 30 विल बी असाइन टू इट, डी विल बी असाइन टू इट, क्योंकि ए के ही केस में प्रॉब्लम थी। ए वॉज कॉमन नेम वेरिएबल इन बोथ द क्लासेस लाइक बी एंड सी। सो दिस वॉज द एग्जाम्पल। तो इसका सोल्यूशन है मल्टीपल, जैसा हमने देखा स्कोप रेजोल्यूशन की हेल्प से आप इस एम्बिग्यूटी को रिजॉल्व कर सकते हो। You have to write the object name first and then class name after the dot operator and then scope resolution operator. A is equal to 10, you can assign the value to it. So the another solution is using virtual base class. So virtual base class का केस होता है कि जब सेम नेम फंक्शन आपके पास दोनों क्लासेस के अंदर होंगे तो आप क्या करेंगे, आप बेस क्लास को एज अ वर्चुअल क्रिएट कर दोगे, आप एज अ वर्चुअल डिराइव कराओगे। हमने यहाँ पर वर्चुअल कीवर्ड जैसा आप देख सकते हो इन मल्टीपल इनहेरिटेंस व्हाट वी वर डूइंग, वी वर नॉट राइटिंग द वर्चुअल कीवर्ड हियर, इससे पहले जो हमने एग्जांपल देखे। बट वर्चुअल बेस क्लास के थ्रू हम जब मल्टीपल इनहेरिटेंस की एम्बिग्यूटी को रिजॉल्व करेंगे तो वी कैन यूज़ वर्चुअल कीवर्ड हियर। वी नीड टू जस्ट राइट द वर्चुअल कीवर्ड इन फ्रंट ऑफ द बेस क्लास नेम व्हेन वी आर डिराइविंग क्लासेस फर्दर फ्रॉम द बेस क्लास। इस केस में क्या होगा, इन दिस केस हमने बेस क्लास को वर्चुअल बना लिया, तो उस केस में सिर्फ एक ही कॉपी ए की आपको असाइन होगी इन क्लास डी, क्योंकि डी हमारी डिराइव क्लास है, सबसे छोटी चाइल्ड क्लास है, तो एक ही कॉपी हमारे पास यहाँ पे असाइन होगी, तो ये स्टेटमेंट में एरर नहीं आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल असाइन वैल्यू 10 एंड देन नेक्स्ट स्टेटमेंट में ये ओवरराइट कर देगा 10 को 100 से। बी और सी ये भी स्टेटमेंट ठीक है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है, ये भी। प्रीवियस केस में क्या हो रहा था, क्योंकि वर्चुअल कीवर्ड नहीं था वहाँ पर, तो इसमें कंपाइलर एरर था। एक सॉल्यूशन था कि आप स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करके कर सकते हो, दूसरा सॉल्यूशन है आप वर्चुअल बेस क्लास बना सकते हो, जैसे हमने यहाँ पर किया है। ओके, नेक्स्ट इज द मल्टीपाथ इन, हाँ यस, वर्चुअल बेस क्लास ऑल्सो वी कैन डिफाइन वर्चुअल बेस क्लास एज a base class which has made virtual to share the single copy of the same name variable and the same name function in the derived class. So this is the diagram through which you can understand the scenario why we had to introduce the virtual base class. This is class A. These are the variable name, or you can say the functions. You can say A class can have same name functions जो B के थ्रू भी इनहेरिट होंगे और C के थ्रू भी इनहेरिट होंगे। अब जो B के पास है वो B के खुद के फीचर्स हैं और A के भी फीचर्स हैं, C के पास भी खुद के फीचर्स हैं एंड A के भी फीचर्स हैं। D विल बी हैविंग नाउ A बोथ फ्रॉम B एंड द C, दो डिफरेंट पाथ के थ्रू आप उसके पास डेटा आ रहा है। वर्चुअल बेस क्लास इंट्रोड्यूस की सो दैट यहाँ पर आपका एक वर्चुअल कनेक्शन इस्टेब्लिश हो सके। तो एक सिंगल कॉपी हमारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की या मल्टीपल वेरिएबल्स की, मल्टीपल सिंगल नेम्स, एक सिंगल कॉपी आपके मल्टीपल फंक्शंस की जो हमारी दोनों क्लासेस के थ्रू पास हो रही हैं वो हम पास करा सकें डिराइव क्लास में, उसके लिए हमने यहाँ पर वर्चुअल बेस क्लास को यूज़ किया है। कंस्ट्रक्टर इन मल्टीपल इनहेरिटेंस, जैसा हमने देखा कि अगर बेस क्लास के पास कंस्ट्रक्टर है, डिराइव क्लास के पास भी कंस्ट्रक्टर है, जो और हम जब ऑब्जेक्ट डिराइव क्लास का बना रहे हैं, it becomes the responsibility of the derived class that it will first call the constructors of the base class and then it will call the constructor of its own. As you can see in this diagram or in this program, यहाँ पर जो आउटपुट आ रहा है वो देख सकते हो आप। हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया वो हमने डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। QPC इज़ अ डिराइव क्लास जो कि दो क्लासेस में से इनहेरिट हो रही है, XYZ एंड ABC। यहाँ पर सबसे पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, देन उसकी इमीडिएट बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर एंड देन OPQ का कंस्ट्रक्टर। दिस इज़ द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्टर इनसाइड द इनहेरिटेंस।
और ये जो टॉपिक्स हैं आप उसी तरह से समझ सकते हो जब आप इन्हें रन करके देखोगे, ठीक है। सो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसीलिए आई कैनॉट रन दीज ऑल दी प्रोग्राम्स ऑन ऑनलाइन एडिटर बिसाइड्स दी एक्सप्लेनेशन. So इसीलिए I have included many examples so you can run all these examples according to your convenience. So in multipath inheritance again, क्योंकि एम्बिग्विटी थी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस मल्टीपल इनहेरिटेंस के केस में, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हमने वर्चुअल बेस क्लास को यूज़ किया. तो वर्चुअल बेस क्लास प्रॉब्लम एक्चुअली फॉर्म कर रही थी एक डायमंड शेप. सो डायमंड शेप जो है हमारी इस तरह से फॉर्म हो रही थी. तो इन सम केसेस इट इज़ ऑल्सो नोन एज मल्टीपाथ इनहेरिटेंस बिकॉज व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, ए इज़ अ बेस क्लास and B and C are the two derived class which have been derived from class A, and D is the third class which is the child class of B and C. So यहाँ पर जो है this D is inheriting all the properties from B and C as well as from A, but A की जो properties है वो B के थ्रू और C के थ्रू दोनों के थ्रू जा रही है. So ये जो डायमंड की प्रॉब्लम यहाँ पर इनकाउंटर हो रही है इसको हम मल्टीपाथ इनहेरिटेंस बोलते हैं, जो कि हमने रिजॉल्व कराया है वर्चुअल बेस क्लास की हेल्प से. सो आप इस एग्जांपल में देखोगे हमने जो प्रोग्राम यहाँ पर लिखा है वो हमने वर्चुअल कीवर्ड यूज़ करके ही लिखा है. सो आप इस ये देखिए शो डेटा हमारे पास दोनों केसेस के अंदर था. तो जब हम डिराइव क्लास में इसको बना रहे हैं और मेन फंक्शन में जब हम इसका ऑब्जेक्ट बना करके इसे कॉल कराएंगे तो यहाँ पर एम्बिग्विटी दिखाएगा कौन से शो डेटा को आप कॉल कराना चाहते हो. इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या किया, एक सिंगल कॉपी पास कराएंगे और प्रॉपर्टीज़ ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस क्लास. और बेस क्लास की एक ही प्रॉपर्टी की कॉपी जाएगी, अलग अलग की नहीं. सो ये हम कर सकते हैं बाय डिक्लेयरिंग द बेस क्लास एज वर्चुअल वाइल क्रिएटिंग द डिराइव्ड क्लास फ्रॉम द बेस क्लास. सो ये जो है हमने यहाँ पर एग्जांपल दोबारा से यहाँ पर मेंशन हो गया है, नो प्रॉब्लम. इसकी जो आउटपुट है वो यहाँ पर मेंशन नहीं है, बट आप सभी इस प्रोग्राम को रन करेंगे खुद. मेन फंक्शन यहाँ पर आपको ऐड करना है और आप इसको ऑनलाइन एडिटर में रन करके देखें एंड लेट मी नो इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम इन दैट. सो ऑल दीज टॉपिक्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दी क्लासेज एज वेल. सो आई होप सबको ये क्लियर हो गए होंगे. अगर नहीं है क्लियर तो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली. थैंक यू सो मच. टेक केयर.